Hello viewers, this YouTube channel is designed to meet the needs of the student who adopted environmental application as their optional subject. Students depend on notes heavily and are much confused with it. In this video, we will take up Unit 1, Caring for Our Basic Resources, Chapter 1, Causes and Consequences of Soil Erosion. Topic to study: definition of soil erosion in detail. Second, different causes of soil erosion like strong wind, running water, overgrazing, deforestation, lack of vegetation, wrong practice of farming, sheet erosion, gully erosion, rill erosion, leaching, etc. Third, effect and impact of soil erosion, and in this we will study impact on agriculture, generation of wasteland, siltation, overgrazing effect, disturb of marine life, increase in global warming, health problem, etc. Prevention of soil erosion. In this we will study afforestation, control of overgrazing, tree break, construction of dams, practice of mixed cropping, contour bending, terrace farming, etc. Soil erosion. What is soil erosion? For this, we must know what is soil. Soil is a top fertile layer of the earth crust. Then what is soil erosion? It is the removal of the top fertile layer of the earth crust. How? Kaise? By the agent of soil erosion. And what are the agent? Wind, water, etc. Though soil erosion is a natural occurring process, but human activity उसको 10 to 40 times increase कर दिया है. Different causes of soil erosion, and in this we will study first overgrazing. What is overgrazing? Imagine a particular land with lots of grass, ढेर सारे घास हैं, और एक फार्मर अपने कैटल्स को डेली बेसिस पे वहाँ ले जाता है विदाउट एनी पास्चर गैप, कोई भी गैप नहीं देता है. इससे क्या होता है, ग्रास अपना रिकवरी रेट खो देता है. क्यों खो देता है? क्योंकि ग्रास ज़रा सा भी सॉइल से बाहर निकलता है, कैटल्स उन्हें खा जाते हैं. ज़रा सा बाहर निकला, कैटल्स खा देते हैं. और क्योंकि सनलाइट पहुंचता नहीं है ग्रास के पास, क्योंकि वो हमेशा सॉइल के नीचे ही रहते हैं, वो अल्टीमेटली मर जाते हैं. बिकॉज फूड वो सनी से बनाते हैं. क्योंकि अब ग्रासेस प्रेजेंट नहीं है, तो सॉइल एकदम लूज़ हो गया है, लूजली बाउंडेड है. अब वो आसानी से सॉइल इरोजन के एजेंट के द्वारा कहीं और डिपॉजिट हो जाएगा, विंड, वाटर, कोई भी. और पीछे क्या बचेगा? बस बैरन लैंड बचेगा. Second, deforestation. Deforestation simply means clearing of trees and transforming forest into cleared land for construction of industries, for agriculture practices, etc. Then, how deforestation is a cause of soil erosion? Basically, ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं सॉइल पार्टिकल्स को बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं और इरोड होने से बचाते हैं. और क्योंकि लार्ज स्केल में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और क्योंकि ट्रीज़ प्रेजेंट नहीं है, तो आसानी से सॉइल इरोजन के एजेंट वहाँ के सॉइल को रिमूव कर देते हैं और पीछे बस अनफर्टाइल लैंड छोड़ते हैं. Third, lack of vegetation. Vegetation help to protect the land from wind erosion. Imagine एक फार्मर है और उसका फार्म बहुत दूर है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ खेती करने की, तो क्या करता है, उस एरिया को डिफरेंट ट्रीज़ से घेर देता है, प्रॉफिटेबल ट्रीज़. उससे उसको इनकम भी मिलता है और सॉइल इरोजन से प्रोटेक्शन भी हो जाता है. वही अगर वो एरिया लैक ऑफ वेजिटेशन होता तो विंड वहाँ का सॉइल आसानी से कहीं और डिपॉजिट कर देता और पीछे बस अनफर्टाइल लैंड छोड़ देता, जो फ्यूचर में भी एग्रीकल्चर के लायक नहीं रहता. Wrong practice of farming is a cause for soil erosion. Basically, monocropping is a wrong practice of farming. It means एक ही तरह की क्रॉप एक लैंड में बार बार लगाना. उससे क्या होता है, सॉइल अपना न्यूट्रिएंट खो देता है, ऑर्गेनिक मैटर खो देता है और कुछ समय बाद वो सॉइल अनफर्टाइल हो जाता है कल्टीवेशन के लिए. तो फार्मर्स क्या करते हैं, वहाँ टिलिंग कर देते हैं, खोद देते हैं पूरा वहाँ की मिट्टी को. उससे क्या हो जाता है, सॉइल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और वहाँ रेन और वाटर बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करते हैं और सॉइल इरोजन बहुत कॉमन हो जाता है अगर
स्ट्रॉन्ग विंड या वाटर वहाँ आ जाए तो। Rivers and flood. Rivers and flood are the very common cause for soil erosion because farmer basically रिवर्स के किनारे अपना खेती करना पसंद करते हैं क्योंकि उनको इरिगेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होता। बाय चांस अगर फेलो पीरियड चल रहा है, खेती का समय नहीं चल रहा है, लैंड खाली है और फ्लड आ गया तो फ्लड क्या करेगा, वहाँ का टॉप फर्टाइल लेयर सब बहा देगा। और वही काम रिवर्स का भी है। रिवर्स क्या करती है, जब बहती है तो अपने किनारे किनारे लैंड को खाते जाती है और अपने अंदर लेते जाती है, जो बेसिकली सिल्ट होते हैं और सिल्टेशन प्रॉब्लम जो हम लोग आगे डील करेंगे वो कॉज करते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड. स्ट्रॉन्ग विंड इज़ अ वेरी कॉमन कॉज फॉर सॉइल इरोजन। बेसिकली ये ड्राई पीरियड्स में बहते हैं और ये क्या करते हैं, अगर पर्टिकुलर लैंड वेजिटेशन लैक है तो ये क्या करते हैं, वहाँ के सॉइल को रिमूव करके बहुत दूर जाके सेटल कर देते हैं और पीछे बस बैरन लैंड छोड़ देते हैं, अनफर्टाइल लैंड छोड़ देते हैं। ये बेसिकली सेमी एरिड और एरिड रीजन में होते हैं जहाँ विंड बहुत कॉमन होता है और वहाँ वेजिटेशन ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलते हैं जो कि सॉइल पार्टिकल्स को टाइटली होल्ड करके रख सकें। Running water. Running water is also a very common cause for soil erosion. Basically, when rainfall occurs in hilly areas, it washes away the fertile layer in the direction of the water. Water deposits fine particles in the plains and leave behind unfertile land. In this only, we are going to discuss about rill erosion and gully erosion. I will basically differentiate between both. Rill erosion is much smaller. It makes smaller path, पतले पतले path बनाते हैं। Gully erosion basically is broader and deeper as compared to rill erosion. If we talk about ratio of breadth and depth of rill erosion, his breadth is more than depth, and if we talk about gully erosion, it approx 1 ratio 1 both breadth and depth. If we talk about agriculture activities, rill can be removed. रिल को हम लोग हटा के वहाँ कल्टीवेशन कर सकते हैं लोग, बट हम लोग गुली नहीं हटा सकते हैं लोग क्योंकि वो बहुत गहरे गहरे होते हैं। सारा गुली पहले रिल ही होता है, पहले पतले पतले रहते हैं चैनल्स और वो क्या करते हैं, अपने अंदर सेडिमेंट को समाते जाते हैं और फिर बहुत गहरे हो जाते हैं जो गुली में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसीलिए सेडिमेंट प्रोडक्शन गुली में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिल। पर अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो रिल हायर नंबर्स पे हैं गुली से कंपेयर किए जाए तो। Leaching is also a very common cause for soil erosion. Basically, after harvest, farmers leave their farm for some time, due to which soil are leached or percolate below the soil due to heavy rain or strong wind. In the next video, we are going to discuss about the impact and effect of soil erosion.